Hello everyone. So after a long time we are making this video because actually there is a possibility that many candidates can forget this, many YouTube channels can forget this, but we cannot forget this until they will release the onboarding. Definitely I will keep it in my mind that still the results and onboardings are pending from TCS. Okay, so one new update we are getting, and that is for multiple candidates. Okay, and if you also reached out to your TPO, maybe you will be getting the same update which we got one from one student, which he said. Okay, and this is true in almost 90% of cases. Okay, TPOs are getting the same message from TCS Tech team. So this is the one message which one candidate shared with me. That is, greetings from TCS Tech team. Thank you for reaching out. We appreciate your continued support and coordination throughout the campus recruitment process regarding the results. We understand the anticipation and eagerness among the students as of now. We are awaiting the final confirmation and result declaration from the leadership. We will promptly share any updates or timelines as soon as they communicate to us. Okay, please rest assured that we are closely monitoring the situation. We'll keep you informed to ensure a smooth program for your students. Thank you once again for your patience and cooperation. Best regards. ठीक है. Our TPU informed that there is a huge delay. Even TCS don't have candidate number confirmation like how many they want to hire. Results are not finalized. भैया कुछ हो सकता है या उम्मीद छोड़ दूं. ठीक है. सो बहुत सारी चीजों के मुझे जवाब देने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट वन बाय वन. ओके, बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी वीडियो, सो मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, द फर्स्ट थिंग इज when TCS started the phases even in the on campus, I मतलब मैंने ये बात बोली नहीं थी बट मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई इस बार तो बैंड बज गई. बैंड बज गई क्योंकि I have not seen any time that TCS is releasing the result even in phases in on campus. Why they can do that? Let me give you one example. So got one message that suppose 400 students given the interview for TCS, okay, from one college. Now suppose in these 400 students, suppose 250 candidates have given the interview for TCS Ninja. Now TCS result released in the first phase, and only they sent that these 10 candidates are selected, and now we will send again the result in phase 2. Okay, what is this matter? ये मैटर क्या है एक्चुअली? तो देखो, जितना मुझे समझ में आ रहा है इतना देखकर क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है दैट TCS is not finalizing the number they want to hire. Okay, like suppose उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई अगर हमसे गलती से ओवर हायर हो गया तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर हमारे पास ओवर हायर हो जाए, हमें लॉस हो जाए, उतने स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट ही ना हो, एंड बाद में जाके हमें लॉस हो जाए. ओके, so even in the on campus they are releasing the results in the phases. Okay, this I can found here. Also एक और जो चीज इसमें लग रही है देखने में वो ये है कि अभी तक TCS even not finalized कितने बच्चों को they want to get selected for TCS Ninja, they want to select for TCS Digital, TCS Prime. Okay, however many candidates thought that कोई select हो गया है, कोई reject हो गया, अपने मन से उन लोगों ने सोच लिया ये सब कुछ, but TCS की तरफ से मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनने ये सब सोचा है कि आप लोगों को कितनी खुशी मिल जाए. बट बिकॉज साफ साफ रीजन दिख रहा है कि भाई ऑन कैंपस में अगर टीसीएस को रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो दे कैन डायरेक्टली डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ऐसा क्या है कि उसमें भी यहाँ पर भाई फेजेस में रिजल्ट करना है? फेजेस में तो टीसीएस ऑन बोर्डिंग करती है, बट रिजल्ट्स जो हैं वो हमें फेजेस में देखने को मिले. दैट मीन्स कि टीसीएस नंबर फाइनली नहीं कर पा रही है कि भाई हम किसी कॉलेज से 30 निंजा वाले कैंडिडेट्स को उठा लें, 20 उठा लें या 40 उठा लें. तो उनने सोचा कि भाई रिजल्ट रिजल्ट का काफी ज्यादा चल रहा है कि रिजल्ट रिलीज नहीं हो रहा, 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट शेयर कर देते हैं, बाकी फिर 2 महीने बाद सोचेंगे नेक्स्ट फेज का रिजल्ट रिलीज करके कि भाई आगे के हमारे रिजल्ट में कितने बच्चे उठाने हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उस हिसाब से. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर मुझे यहाँ पर देखने को लग रहा है. ठीक है, कि टीसीएस के पास अभी नंबर ही फाइनल नहीं है लाइक हाउ मेनी कैंडिडेट्स दे वांट टू हायर. ओके, सेकंड थिंग, मेनी कैंडिडेट्स आर सेइंग दैट कैन क्या मैं होप छोड़ दूं? देखो, होप छोड़ना या ना छोड़ना दूसरी बात है, बट अगर आप 2025 बैच से हो, आपने टीसीएस का एनक्यूटी का एग्जाम दिया है, सीधी सीधी बात यह है, आप मेजरली मान के चलो कि दिसंबर तक आपको मेजर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी. ठीक है, दिसंबर तक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, और मार्च तक फिर आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी लगभग स्लो पेस में. और फिर मार्च के बाद जनरली क्या होता है कि 2026 बैच के लिए हायरिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी. अब ये आपके ऊपर है, उम्मीद छोड़ दो ना छोड़ दो, बट
मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं हो। जिस हिसाब से इनकी हरकतें जा रही हैं, इस बार जो नंबर है वो काफी ज्यादा ड्रॉप करेगा। क्लियरली वी कैन सी कि इस बार जो नंबर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाला है टीसीएस एनक्यूटी में। और ये बात मैंने फेब्रवरी में बोल दी थी उठा के, फेब्रवरी में वीडियो में मैंने बोल दिया था कि इस बार का जो टीसीएस एनक्यूटी आएगा उसमें नंबर नहीं आने वाला। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो प्रीवियस बच्चे हैं उनकी ऑनबोर्डिंग अभी भी पेंडिंग है कुछ बच्चों की। सो इस बार के जो बच्चे हैं उनकी तो हम क्या ही बात करें, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। सो नंबर तो ड्रॉप होने ही वाला है, तो होप छोड़ने की बात यह है कि होप छोड़ना या ना छोड़ना कुछ नहीं है। रिजल्ट आता है, बहुत बढ़िया बात है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो आपके हाथ में एक ऑफर होगा। बट द थिंग इज आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि डेफिनेटली लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको अदर अपॉर्चुनिटीज में किसी में ऑफर मिल रहा है, ट्राई टू ग्रैब दैट। अगर आपको पे पैकेज अच्छा मिलता है प्लीज ज्वाइन दैट, अगर आपको ज्वाइनिंग भी मिल रही है तो। बिकॉज अभी रिजल्ट इतना डिले है, एंड लास्ट ईयर का रिजल्ट ऑलरेडी इतना डिलेड था। तो सॉरी, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो जब उस स्पीड पे था तो हमने कहा था कि डिलेड है, और उसकी ऑनबोर्डिंग्स की अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो डेफिनेटली इस बार की जो ऑनबोर्डिंग्स है उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है फ्यूचर में जाके मेरे वर्ड सही हो जाए, इस पे कोर्ट केस हो जाए, जैसे कि इन्फोसिस पे हुआ था। इन्फोसिस ने यहाँ पर 2 साल तक ऑनबोर्डिंग्स को होल्ड करके रखा था, ओके। सो मे बी, ओके। सो जिस हिसाब से हरकतें हैं उसको देखकर यही लग रहा है। बाकी जो बाकी के रिजल्ट्स के बारे में बात आते हैं, देखो दो चीजें जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो ये है कि इन लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज हो रही है। इन लोगों को पता है कि भैया जिन लोगों के पास जिन लोगों ने अपग्रेड का एग्जाम दिया है उनके पास तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑफर है ही, तो उनकी तो भैया वो तो सिलेक्टेड है ही। तो पहले तो उन्होंने उन लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उतने बच्चे तो सिलेक्टेड थे ही ऑलरेडी, ठीक है। सो दे डिक्लेयर द ऑफर फॉर दैट, ओके। बट नाउ अब उनने कहा कि भाई अपग्रेड वालों का रिजल्ट तो हम पहले रिलीज कर रहे हैं, बाकी के बच्चे कैंडिडेट्स दो टाइप के हैं, एक है ऑन कैंपस और एक है ऑफ कैंपस, ठीक है। अब जनरली इस केस में क्या होता है कि जो ऑन कैंपस कॉलेजेस होते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस की रेपुटेशन रहती है, टीपीओ से संबंध रहते हैं। अब होता क्या है कि इसमें क्या होगा कि ऑन कैंपस को डेफिनेटली आप मानो या ना मानो बट प्रेफर किया जाता है, मतलब जैसे कंपनीज जो होती है ऑन कैंपस के कैंडिडेट्स को ज्यादा सिलेक्ट कर लेती हैं। सो ये चीज प्रेफरेंस में चली जाती है। तो आप ये मान लो कि चलो ऑन कैंपस में नंबर्स ड्रॉप होंगे एंड साथ साथ में रिजल्ट डिले होगा, बट स्टिल देयर आर गुड होप्स for the students, uh, if the TPO is associated with TCS or the examination was on through on campus। but अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ऑफ कैंपस से है और किसी भी प्रकार का कोई टीपीओ से एसोसिएशन नहीं है, यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और उसका सिंपल सा रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर एक तो टीसीएस अगर सिलेक्ट नहीं करेगी तो टीसीएस की कोई जवाबदेही नहीं है। ऑन कैंपस में क्या होता है कि भाई मिनिमम नंबर इतने तो बच्चों को आपको रिक्रूट करना ही है। इधर तो टीसीएस को फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो 60% 80% कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई ऑफ कैंपस का एग्जाम दिया है, किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कॉलेजेस में, आपस में बच्चे एसोसिएट होते नहीं है, तो इसके लिए कुछ भी हुआ जा सकता है। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई कैन फील इज के ऑन कैंपस के लिए तो तब भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट ऑफ कैंपस के लिए इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम इफ योर टीपीओ इज नॉट एसोसिएटेड, ओके, जिस हिसाब से रिजल्ट्स जा रहे हैं। बाकी अगर बात करें रिजल्ट्स की, मेरे पास कुछ नए इनपुट्स हैं, तो भाई सही बताऊं तो हाथ पे गिनने लायक इनपुट्स हैं, कुछ खास नहीं है। अभी कुछ रिजल्ट्स मेरे को कुछ बच्चों ने बताया था, दे गॉट द ऑफर लेटर और अ मेल, बहुत ही हाथ पे गिने चुने बच्चे हैं। कुछ बच्चे वही अपग्रेड के कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी कुछ दिनों में आया था, ठीक है। एक बच्चा था उसने मेरे को बताया था ही इज फ्रॉम एपी, ही गॉट द मेल, ओके। एंड शायद एक बच्चे को और मेल आया था, अगेन ही वाज फ्रॉम एमपी ओनली, ओके। सो एमपी से ही था वो बच्चा, मुझे याद नहीं कौन सी सिटी से, बट एमबी से था, ठीक है। एंड एक का एपी था। अब इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, 2 लाख से ऊपर होंगे, उसमें एक दो बच्चे बता रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो दिस इज द स्टेटस करंटली ऑन गोइंग। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको समझ में आए होंगे, जितने अपडेट्स थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने कुछ नेगेटिव बोल दिया ज्यादा, सो देखो नेगेटिव नहीं है, बट जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हो उसको देखकर जो सच्चाई है मैंने वही बोली है, व्हाट आई कैन फील, ओके। बाकी अगर सब कुछ अच्छा होता है, मैं तो यही होप करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, जल्दी जल्दी चीजें सॉर्ट आउट हो। बिकॉज टीसीएस अभी तक इवन ये नहीं फाइनल कर पा रही है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको हायर करने हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज एक्चुअली आई थिंक, जिसकी वजह से वो लोग रिजल्ट रिलीज नहीं कर रहे हैं, कि भाई उनको नंबर ही नहीं पता कि कितने रिजल्ट उनको रिलीज करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।